Good morning to everyone. See, this is the first lecture of my subject Accountancy and Financial Management 4. In the last semester, I was taking Accountancy and Financial Management 3. This is the advanced level of the subject. So as we go ahead, you will notice that the level of accountancy and financial management will increase. So here, let us see what all topics you have in this semester. Let us see the syllabus. So the syllabus for the subject goes like this. You have in this semester the chapter called Introduction to Company Accounts. Now in the previous semester, we were dealing with partnership accounts. We were dealing with partnership accounts. And now in this semester, we will be doing company accounts. So chapters will be related to company. All the chapters which we will be doing in this semester will be related to company. So the first chapter, what is there is Introduction to Company Accounts. We had done one chapter in the last semester, conversion of firm into limited company, wherein we had seen the format of balance sheet of companies. So here also you will come across the company's balance sheet. You have only balance sheet sums. तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, because we will be dealing with all the company accounts, all the chapters related to company. We have this chapter, Introduction to Company Accounts, where we will see the format of the balance sheet according to the Companies Act. तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, वी विल अगेन सी हियर. वी हैव डन दिस little bit in the conversion chapter. So this will be related to that chapter. Not everything, just the format of the balance sheet. We will be seeing the format of the balance sheet in this chapter. Second one, as I have written in the bracket, only the theory part. So how the company issues debentures. Now, what do you mean by debenture? Debenture is a source of borrowed fund to the company. If the company wants to get money from the public, it can issue debentures in the market, and only companies have the right to issue debentures. So debenture is a medium to collect money from the public, and the one who purchases the debentures of our company becomes the debenture holder of the company, and only companies are entitled to issue debenture in the market. डिबेंचर को खरीदने से हम डिबेंचर होल्डर हो जाएंगे, और डिबेंचर के ऊपर यू विल बी गेटिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. डिबेंचर के ऊपर व्हाट यू विल गेट a fixed rate of interest. You will get a fixed rate of interest. Now next one, redemption of preference shares. Redemption of preference shares. Now what do you mean by preference shares? Preference shares is a type of share capital which get preference in two things. Preference means what? First right, priority, importance. What does the preference shares get? It get priority, it get importance on two things. First one is
फॉर डिविडेंड, मतलब पहला डिविडेंड किसको पे करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को. एज वी नो देर आर टू टाइप ऑफ शेयर्स, preference shares and equity shares. There are two type of shares, preference shares and equity shares. So the preference shares enjoy the preference फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब इनको प्रेफरेंस मिलेगा. किस चीज का प्रेफरेंस मिलेगा, टू गेट द डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. मतलब ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट देयर मनी प्रायर बिफोर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिफोर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा मिलेगा जो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा मिलेगा. सो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय प्रेफरेंस with a preference for two things, one for the dividend and second for the repayment of capital. But here what are we seeing, we are here concerned on redemption of preference shares. Now what do you mean by redemption? Redemption means repayment of preference shares. मतलब यहाँ पे हम लोग here we are discussing about the payment, the repayment of preference share capital. मतलब preference share capital का जब पैसा उनको वापस दिया जाता है तो उसका क्या accounting procedure है, that we will be doing, we will be learning in this chapter. So this chapter is based on redemption of preference shares. मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा जब वापस मिलेगा तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग प्रोसीजर, दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. Then we have redemption of debentures. We have already understood what a debenture is. Debenture is a type of what? Type of borrowed fund. When the company wants to borrow money from the public, the company may issue debentures in the market, and once the debenture is issued, after a certain period of time, this debenture has to be repaid. मतलब कंपनी ने जो पैसा कलेक्ट किया है डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर के लिए, वो थोड़े टाइम के बाद, एक फिक्स्ड पीरियड के बाद वो पैसा वापस करना है, रिटर्न करना है. तो रिटर्न करने को हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. So when the company repays the amount of debentures to the debenture holder, it is known as redemption of debentures. It is known as redemption of debentures. So we have द चैप्टर कॉल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर्स को वापस जब कंपनी करती है तो क्या प्रोसीजर होगा वो देखेंगे. एंड देन द सिमिलर वन वी हैव रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जहाँ पे हम लोग देखेंगे जब डिबेंचर का पैसा कंपनी वापस करेगी तो क्या प्रोसीजर होगा. एंड उसके बाद वी हैव द लास्ट चैप्टर विच वी विल स्टार्ट फर्स्ट. This is the chapter which we will be doing first, which is known as profit prior to incorporation. Now, what do you mean by incorporation? Incorporation means registration of a company. So, incorporation means registration of the company. तो यहाँ पे in this chapter what we will see, that the company, that the firm is getting converted into a company. तो क्या होता है, there is a partnership firm in which there are few partners. Now these partners decide कि अब हमें we have to think big. पार्टनरशिप बिजनेस करके बहुत इतना प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे, तो लेट अस कन्वर्ट आवर बिजनेस इनटू अ कंपनी. तो ये कन्वर्जन
कभी भी हो सकता है, ईयर के बिगिनिंग में हो सकता है, ईयर के मिडल में हो सकता है, ईयर के एंड में हो सकता है। बट जब ये प्रोसीजर चलता रहेगा तो बिजनेस बंद नहीं करेंगे, बिजनेस साइमल्टेनियसली बाजू में चलता रहेगा। तो ऐसे टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देयर विल बी टू कॉलम्स, देयर विल बी टू कॉलम्स। वन, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये पीरियड में कंपनी फॉर्म नहीं हुआ है, और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी इज फॉर्म्ड। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो कॉलम बनाना है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जिसको हम बोलते फर्म है, अभी तक कंपनी का परमिशन नहीं मिला है, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फर्म जो है वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो कॉलम्स है, एक बिफोर इनकॉर्पोरेशन। नाउ यू विल आस्क मी, इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद द फर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। तो कंपनी जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा, इनकॉर्पोरेशन के बाद जो भी प्रॉफिट होगा, इट विल बिलोंग टू द कंपनी, एंड उसके पहले जो भी प्रॉफिट होगा, इट विल बिलोंग टू द फर्म। सो फर्म का प्रॉफिट एंड कंपनी का प्रॉफिट, ऐसे हमें डिवाइड करना है। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें दो कॉलम प्रिपेयर करना है, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। And all the expenses of the full year has to be divided. सिर्फ expenses नहीं, incomes को भी, all the incomes and expenses of the full year is divided between pre-incorporation एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और कैसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, कंपनी के एक्सपेंसेस और इनकम्स को दो पीरियड में डिवाइड करेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सो we have four altogether 5 chapters to complete in this subject. In our, we have 5 chapters, which all the 5 I have discussed and given you a brief introduction of all the 5 chapters. Now in this semester we will be taking up all these 5 chapters one by one, and will do the sums based on these chapters. Now the paper pattern, if it is offline, if it will be an offline examination, this will be the paper pattern, which I have also discussed in the previous semester, that the first question will be objective question. The first question will be objective question, and which will be of 20 marks. You will have 12 objectives in this objectives will be divided into two subparts, A and B. A में 12 questions रहेंगे, A में 12 questions रहेंगे, जिसमें से आपको कोई 10 questions सॉल्व करना है। आप पूरा 12 करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? Is the screen visible to everyone? Is everyone able to see the screen? See, question number 1 will be objectives, which will have 2 sub questions. Question number A, जिसमें 10 क्वेश्चन, जिसमें 12 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कोई भी 10 सॉल्व करना है, जो कि, एंड क्वेश्चन नंबर बी में भी आपको 12 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको कोई 10 के लिए मार्क्स मिलेगा, बिकॉज ईच क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स ईच। आप पूरा 12 भी करेक्ट करोगे, आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स ही मिलेगा। तो
यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, मैच द कॉलम हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 to 4 विल बी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विथ सब ऑप्शन, ऑप्शन के साथ रहेगा 2 से 4, तो 20 मार्क्स के लिए रहेगा, उसके अंदर 10-10 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, या तो एक क्वेश्चन पूरा 20 मार्क्स के लिए भी हो सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल बी अ थियरी क्वेश्चन, जिसमें 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो शॉर्ट नोट्स आप सॉल्व कर सकते हो। 6 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस सॉल्व करना है, 20 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स ईच। तो ऐसा पेपर पैटर्न मुंबई यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है, बट दिस पेपर पैटर्न तभी होगा अगर आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। अभी तक इट इज नॉट क्लियर कि ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहेगा, बिकॉज द कोविड पैंडेमिक इज स्टिल गोइंग ऑन, and we are not our schools and colleges, मतलब we don't know that इन द फ्यूचर आपको कैसा टाइप का एग्जामिनेशन होगा। अब आपका सेमेस्टर 3 वॉज ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो चांसेस आर देयर, मोर चांसेस आर देयर कि आपका सेमेस्टर 4 भी ऑनलाइन हो, चांसेस आर मोर। बट इफ द यूनिवर्सिटी डिसाइड्स कि नहीं सेमेस्टर 4 ऑफलाइन करना है, तो it will be offline examination, but more chances are there that you will have a online examination like your semester 3। सेमेस्टर 3 ऑनलाइन था, तो सेमेस्टर 4 भी ऑनलाइन होने के चांसेस ज्यादा है, बट 100% नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मन डिसीजन, मतलब उनका डिसीजन ही मेन है। अभी तक कोई सर्कुलर नहीं है, तो चांसेस दोनों का है, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। तो इसके बाद लेट अस गो टू द next, our first chapter. Let us go. This is the last one in the textbook, but we will be doing this chapter in the first. Now I have already told you that what is profit prior to incorporation. Profit means the profit of the business. Prior matlab before to incorporation. Incorporation means registration of the firm into a company. यहाँ पे incorporation means in simple words registration, in simple words registration। incorporation से कंपनी का जन्म होता है। incorporation से what happens, a company is formed। अगर there is incorporation means it is registration of a company। So incorporation में, as I told you, there are two period, pre-incorporation and post-incorporation। Pre-incorporation means period before registration into company, and post incorporation means period after registration of the company। Now division of profits, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए कि क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अगर कभी हमें ट्रेडिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो हमें परचेसेस दिया रहेगा, सेल्स दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, उसके इंफॉर्मेशन में हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देयर विल बी 2 कॉलम्स, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड में। तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट हमेशा सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम ज्यादातर, इफ नथिंग इज टोल्ड इन द क्वेश्चन, हम सेल्स के रेशो में डिवाइड करेंगे। एंड सेल्स का रेशो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो हाउ टू कैलकुलेट द रेशो ऑफ सेल्स, we have done this in departmental final accounts in your last year कि कैसे रेशो फाइंड आउट करते हैं। The information will be given in the question, and based on that information, what we will do, we will divide the gross profit into pre-period and post-period on the basis of the sales ratio।
देन स्पेसिफिक इनकम एंड एक्सपेंसेस, अगर कोई भी एक्सपेंस या इनकम एक्सक्लूसिवली पार्टनर से रिलेटेड होगा। पार्टनर्स कहाँ पे होते हैं? कंपनी में या फर्म में? पार्टनर्स कहाँ पे होते हैं? फर्म में या कंपनी में? फर्म में होते हैं ना। तो अगर कोई पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम होगा तो हम वो प्री पीरियड में दिखाएंगे। अगर कोई भी एक्सपेंस या इनकम कंपनी से रिलेटेड होगा, जैसे डायरेक्टर्स फी, डिबेंचर इंटरेस्ट, एनी, बिकॉज डायरेक्टर्स तो कंपनी में होते हैं, डिबेंचर सिर्फ कंपनी इशू कर सकता है, फर्म नहीं। तो अगर डिविडेंड पेड, अगर ऐसा कोई एक्सपेंस है जो एक्सक्लूसिवली कंपनी से रिलेटेड है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, दिस इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मींस कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस, कंपनी का फॉर्म होने वाला खर्चा। तो ऐसे सब एक्सपेंस जो कि कंपनी से रिलेटेड है, हम क्या करेंगे, पोस्ट पीरियड में बताएंगे। जो कि एक्सक्लूसिवली कंपनी से रिलेटेड है तो पोस्ट पीरियड में बताएंगे। जो भी एक्सपेंस एक्सक्लूसिवली फर्म से रिलेटेड होगा उसको प्री पीरियड में बताएंगे। बट कोई कॉमन एक्सपेंस है जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब कॉमन एक्सपेंस है जो फर्म भी इनकर करता है और कंपनी भी। कॉमन एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस which are incurred both by the firm as well as the company, are those expenses and incomes, those items which are incurred both by the company and the firm। तो ऐसे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को हम कैसे डिवाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ टाइम एंड द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ सेल्स। रेशियो ऑफ टाइम मतलब क्या? फर्म है ना, साल के 6th मंथ में, मतलब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है जैन में और जून 30 को कंपनी फॉर्म हुआ, तो प्री पीरियड में भी 6 महीना रहेगा, पोस्ट पीरियड में भी 6 महीना रहेगा। तो रेशियो ऑफ टाइम मतलब हम काउंट करेंगे फर्म के कितने मंथ्स हैं, कंपनी के कितने मंथ्स हैं, कितने महीने फर्म का है और कितना महीना कंपनी का है, तो हमें मिलेगा रेशियो ऑफ टाइम। तो हर एक क्वेश्चन में हमें टाइम रेशियो निकालना है और हर एक क्वेश्चन में हमें सेल्स रेशियो निकालना है। सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि प्री पीरियड का सेल है 1 लाख और पोस्ट पीरियड का सेल है 2 लाख, तो रेशियो हो जाता है 1:2। तो this information will be given in the question and accordingly we will prepare time ratio and sales ratio। तो इसके बाद जो प्री पीरियड का प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज अ प्रॉफिट विच इज नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। मतलब बताओ, एक बार फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गया तो दोबारा कभी फिर से फर्म में कन्वर्ट होगा? एक बार आप सपोज आप एस वाई बी कॉम पास हो गए तो उसके बाद आप टी वाई बी कॉम में जाओगे, आप दोबारा एस वाई बी कॉम में एडमिशन लोगे। आप एक बार एस वाई बी कॉम पास होने के बाद, तो कभी भी एक बार आप फर्म से कंपनी में आपका बिजनेस कन्वर्ट हुआ तो दोबारा आप पीछे जाओगे क्या? दोबारा आप कंपनी से खुद के बिजनेस को फर्म में कन्वर्ट करोगे? वंस यू हैव मूव्ड वन स्टेप up above, you will never look behind। कि एक बार आपका फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गया तो दोबारा आप आपके कंपनी को फर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो ऐसा नेचर का प्रॉफिट जो फर्म का प्रॉफिट है वो कभी दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो ये प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में शो करते हैं। प्री पीरियड के प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं और प्री पीरियड के लॉस को हम गुडविल बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। प्री पीरियड के प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं एंड प्री पीरियड के लॉस को हम गुडविल बोलते हैं। एंड पोस्ट पीरियड इज द कंपनीज पीरियड। अब आगे आगे हमेशा कंपनी रहने वाला है, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक कंपनी रहेगा। तो
पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे और पोस्ट पीरियड के लॉस को हम नेट लॉस बोलेंगे। पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे और पोस्ट पीरियड के लॉस को हम नेट लॉस बोलेंगे। समझा? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, दिस इज द रेगुलर प्रॉफिट कि आगे हमेशा कंपनी ही रहने वाला है। तो टू नेट प्रॉफिट बाई नेट लॉस, प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड आता है पीएनएल अकाउंट का, तो टू नेट प्रॉफिट, और लॉस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, तो बाई नेट लॉस। तो इसके बाद what we will do, this slide is done. Now give me 2 minute time, what 1 minute time, हम एक I will stop this share. Give me 1 second. What I want to discuss some very important thing with you, that is basis of allocation. कौन से चीजों को हम कैसे डिवाइड करेंगे, अब वो देखते हैं। Come, let us come here now. Here, see, this is very important. How to divide the income and expense. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में क्या आएगा, इंटरेस्ट टू वेंडर। वेंडर कौन है? जिसने अपना बिजनेस को सेल किया है कंपनी को, तो उसको मिलने वाला इंटरेस्ट, उसको मिलने वाला सैलरी। वेंडर कौन होगा? पार्टनर्स या ओनर ऑफ द फर्म, तो उनका सैलरी, उनका कमीशन, उनका इंटरेस्ट, सब कुछ प्री पीरियड में आएगा। तो पोस्ट पीरियड मतलब कंपनी का पीरियड, इसमें क्या आता है? फीस टू डायरेक्टर, डायरेक्टर सिर्फ कंपनी में रहते, सैलरी टू डायरेक्टर, डायरेक्टर सिर्फ कंपनी में रहते, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर सिर्फ कंपनी में रहते, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, रिटर्न ऑफ डिबेंचर, सेल करने का राइट सिर्फ कंपनी को है, तो ये डिस्काउंट, ये इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर सब कंपनी में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, ये भी सिर्फ कंपनी में होता है, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस। शेयर इशू करने का हक सिर्फ कंपनी को है, तो ये भी पोस्ट पीरियड में आएगा। शेयर ट्रांसफर फी रिसीव्ड, इनकम है शेयर से ट्रांसफर करते वक्त, पर शेयर्स तो कंपनी में होता है, तो ये भी कंपनी पोस्ट पीरियड में आएगा। एनी एप्रोप्रिएशंस बाय द कंपनी, मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, ये सब कुछ कंपनी का एक्सपेंस है, तो कंपनी में आएगा। नाउ एनी टाइप ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंस, जैसे रेंट पेड, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, पोस्टेज, ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, तो ये कैसे आएगा? सैलरी ऑल्सो, इफ नथिंग इज टोल्ड, इट विल, दैट विल ऑल्सो बी अ फिक्स्ड एक्सपेंस। तो ये सबको हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। फर्म का 6 महीना, कंपनी का 6 महीना, तो 1:1, 6:6 या 6 दोनों सेम है, तो 1:1, ये रेशो में हम फिक्स एक्सपेंसेस को टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे। और रेशो ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस विच आर रिलेटेड टू सेल्स, सेलिंग ओवरहेड, सैलरी टू सेल्समैन, सेल्स कमीशन, एडवर्टाइजिंग, फ्रेट आउटवर्ड, डिस्काउंट कब अलाउ करते हैं? जब हम सेल्स करते हैं। तो all expenses which are related to sales will be divided in the ratio of sales. और एक चीज है, अगर हम ऑडिट कंपनीज के लिए करेंगे, क्वेश्चन में दिया है द ऑडिट फी इज रिलेटेड टू कंपनीज ऑडिट, तो हम पोस्ट पीरियड में चार्ज करेंगे, बिकॉज इट इज कंपल्सरी फॉर द लिमिटेड कंपनी टू डू ऑडिट। लेकिन अगर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑडिट फीस विल बी डिवाइडेड एज पर टाइम रेशो। अगर ऐसा कुछ दिया नहीं है कि ऑडिट फीस कंपनी को बिलोंग करता है, तो कुछ भी नहीं दिया है, तो टाइम रेशो। और अगर कभी टैक्स ऑडिट क्वेश्चन में दिया है, टैक्स ऑडिट सेल्स से रिलेटेड होता है, तो हम सेल्स रेशो में डिवाइड करेंगे। बट व्हेन नथिंग इज टोल्ड, हम हमेशा रेशो ऑफ टाइम रेशो में डिवाइड करना है। एंड इसके बाद इंटरेस्ट टू वेंडर,
मतलब हम जब बिजनेस सेल करते हैं कंपनी को, तो हमें बदले में परचेज कंसिडरेशन मिलना चाहिए। हमारे कंपनी के लिए हमें हमारे फर्म जो हमने कंपनी को सेल किया उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। अगर वो पैसा हम टाइम पे नहीं चुकाएंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो उसके लिए हम सेपरेट रेशो बनाते हैं, वो हम एग्जैक्ट जब सम स्टार्ट करेंगे तब मैं बताऊंगी। और इनकम टैक्स प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो प्रॉफिट के हिसाब से करना, डिवाइड करना है। वॉट एवर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, उसके हिसाब से वी विल बी डिवाइडिंग। दैट ऑल्सो आई विल शो यू व्हेन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन। Now with this, I end today's lecture. Thank you everyone.